we will be going ahead with a standard port in volume 1. Now calculation of tides is different in different volumes. Volume 1 में procedure अलग है, volume 2 and 3 में procedure अलग है. So standard port का procedure अलग है, secondary port का procedure भी अलग है. So one by one ये सारे procedures जो है हम देखते चले जाएंगे. सबसे पहले जो देखेंगे वो होगा volume 1 and standard port. So this is what we are going to do. इसके लिए हमें एक तो ये डायग्राम चाहिए होगी. So you have the diagram ready with you. और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी बेटा your pencil box, pencil, scale, eraser, plotting tools ये चाहिए होंगे हमें. So please keep these ready. हम क्वेश्चन पिकअप करेंगे और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे एक्चुअल इस डायग्राम के साथ और टाइड्स निकालेंगे. That is what we are going to do. So if you don't have the tools close by, pencil, basically you require a pencil, a scale, yeah, that's all, eraser, and this diagram. That's what you require. Calculator, if possible, have the calculator with you. So keep these items close by. You can arrange them, keep them close, and we shall go ahead. Report. So we will see standard port first, and then later on we will move on to the secondary port. So let's go ahead and see. We hope you have watched our earlier video titled Tide 1, which was aimed at understanding tides and understanding the layout of tide tables. If not, we recommend that you watch that video before going ahead with this one. We also need to familiarize ourselves with a couple of terms which shall be used when we engage in calculation of tides at standard ports of ATT volume 1. The first term is the range of tide. Is the difference between the height of high tide, that is high water, and height of low tide, that is low water. The difference between the heights is referred to as range of tide. Duration of tide is the interval of time between high tide and low tide. That means if the height difference is called as range of tide, the time difference is referred to as duration of tide. Interval from high water is the interval either before or after high water, as the case may be, between the time of interest, that is the time for which we are interested in the height of tide, and the time of high water, which is closest to that time. So it could be before high water or after high water. Okay. So beta, just go through these points one by one in your mind. Let me know any doubts. Sir, last वाला point, sir. Okay. Beta, last जो लिखा हुआ है, that is interval from high water. I'll give you an example. Let us say जो पोर्ट हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डे में जब हमें टाइड निकालना है, हमने देखा वहाँ पे हाई वाटर हो रहा है एट 1200. सो हाई वाटर कब हो रहा है? 1200 पे हो रहा है. अब उन्होंने हमें हाइट निकालने के लिए बोला है एट 1000 आवर्स. हमें 10 बजे की हाइट निकालनी है. 12 बजे हाई वाटर हो रहा है, उसकी हाइट तो टेबल में दी होती है, वी कैन स्ट्रेट अवे पिक फ्रॉम देयर. हमें अब 10 बजे की हाइट निकालनी है. अब ये जो 10 बजे का टाइम है, ये हाई वाटर से कितना पहले है बेटा? Sir, 2 hours. वेरी गुड, इट इज 2 आवर्स बिफोर. इसी को बोला जाता है इंटरवल फ्रॉम हाई वाटर. Okay, sir, understood. ओके, मीन्स हाई वाटर से कितना पहले या कितना बाद के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है. दैट इज व्हाट इज इंटरवल फ्रॉम हाई वाटर. और बताओ बेटा, और डाउट? No, sir. Very good. Let's proceed ahead. After high water. In this video, we shall be learning
the calculations of tide at the standard ports in ATT Volume 1. And we know that the standard port information in the tide tables is contained in what we call as Part 1 of the tide tables. Part 1 of the tide tables contains daily prediction of times and heights of high and low water at the standard ports. How this information is captured in ATT Volume 1, let's familiarize with those pages. One of the pages for Part 1 shall be as what has come on the screen. On top, we'll have the name of the port. So beta just open up the tide tables. वॉल्यूम 1 की कोई भी एक पोर्ट खोल सकते हो आप. यहाँ पे हमने एंटवर्प को खोला है. आप चाहो तो यही पेज ओपन कर सकते हो. आई थिंक इट इज 182 पेज नंबर. So you can see all these items. And its coordinates, latitude and longitude. Then right top, we have the year for which the tide tables are made. Left top of this page, we have the time zone. That means the time zone in which the times are tabulated. So whatever time for high and low water we get from these pages, they shall be in the time zone that is stated on top. And then we see this main body of the page, which contains daily predictions of times and heights of high and low water for each day of the year. So beta take your time and identify all these items. Are you able to get all these items in the table? Yes, sir. Okay. Very good. So shall we move ahead, beta? Comfortable? Yes, sir. Okay, let's go. In Part 1 of ATT Volume 1, for every standard port, there shall also be a curve or a diagram that shall be used for calculation of heights at times other than high and low water. So this will be the curve which shall be used for interpolation. Now for ATT Volume 1, each standard port has its own curve. So the curves are port specific for ATT Volume 1, and you have to use the curve of the port in question. The curve shall look the way it is shown on the screen. What is there on the screen is the curve for the port of Antwerp, which is a standard port of one of the standard ports of ATT Volume 1. So beta, you have this curve on the other side of the page, 182 page number. So just open this page on your book and you will be able to see all the items which we are going to explain here. Let's familiarize ourselves with this interpolation curve or the tide curve. Now, if you see on the x-axis of this curve at the middle, we have the high water. To the right of it, we have on the this base axis interval after high water, and you can see this interval is prefixed with plus, that means plus 1 hour, plus 2 hour, and so on. And right at the end, we have the low water here. To the left of this high water, we have interval before high water, and intervals are prefixed with minus, and again we have high water on this side. In this diagram, this line represents the chart data. Then we have this scale on top. This is the scale for high water heights in meters. It's written out here. And you also have mean high water neaps and mean high water spring also marked on the same scale. And likewise, at the bottom, we also have a scale, which is for low water heights in meters. And you have mean low water spring and mean low water neaps also marked out here. Then out here, we have something marked as mean ranges. And if you see against the spring range, which in this case is 5.5 meters, you have this bold line. That means the bold line here represents the curve for the spring range. And likewise, this broken line where the neap range is 4 meters in this case,
the broken line represents the curve for the NEAP range. Now, to use this curve, we shall take into account the range of tide in question. Okay. बेटा, are you able to identify all these items in the diagram? ये सारी items आपको मिल गई हैं, चेक कर लो ध्यान से, और कहीं पे भी डाउट है, any item ask me बेटा. Okay, I hope everybody got it. Shall we move ahead now? Sir, one question is there. बोलो बेटा. Sir, this MHWS and MHWN, can you please elaborate this one? Okay This- बेटा. MHWS is mean high water springs. So for this particular port in the year 1992, the mean high water springs is 6 meters. This is the meaning, beta. Are you? Did you understand? Okay, sir. Okay, sir. Clear. Okay. और बेटा और कोई डाउट? वेरी गुड. सो वी आर मूविंग अहेड नाउ. अब हम बेटा क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमें दो ग्राफ दिख रहे हैं. एक है सॉलिड लाइन वाला ग्राफ, एंड सॉलिड लाइन वाला ग्राफ अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट represents the spring range, okay, which is 5.5 meters. और जो ये डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है, it represents the NEAPS range. NEAPS range जो है ये 4 मीटर है. ओके. अब हमें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा कर्व यूज करना है? Shall we use the dotted line or we use the solid line? इस चीज़ को हम देख रहे हैं. So basically मैं एक बार आपको बताता हूँ, फिर दोबारा से एक्सप्लेनेशन भी होगी. अगर आपकी रेंज 5.5 मीटर हो तो आपको सॉलिड लाइन यूज़ करनी है. अगर आपकी रेंज 4.0 मीटर हो तो आपको डॉटेड लाइन यूज़ करनी है. और अगर आपकी रेंज इन दोनों के बीच में आ जाए, लेट अस से आपकी रेंज आ गई 4.7 मीटर्स. ओके, 4.7. 4.7 इज ऑलमोस्ट मिडवे बिटवीन दीज टू वैल्यूज. सो अगर आपकी रेंज 4.7 है तो आपको कौन सा कर्व यूज़ करना है? आपको इन दोनों के ऑलमोस्ट मिडवे में एक कर्व यहाँ पे जो बनता है इन दोनों के मिडवे, उसको यूज़ करना है. ये इसका ब्रॉड मीनिंग है. अभी इसको डिटेल में भी समझेंगे कि हम इसे कैसे यूज करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड इट इन डिटेल आल्सो नाउ. This case, the broken line represents the curve for the NEAP range. Now, to use this curve, we shall take into account the range of tide in question. If the range of tide in question matches with the spring range, then we shall use the spring curve. We shall use the mean spring curve. And if the range of tide in question matches with the NEAP range of, say in this case was 4 meters, so for every curve it shall be mentioned here, so you'll have to see from here. So if our range matches with the NEAP range, then we shall use the broken line curve, which will be the mean NEAP curve. Now, if our range happens to be something between mean and spring range, then we shall do the interpolation, linear interpolation, and it can be visually done. You don't have to calculate or draw by scale. You can visually interpolate between the NEAP curve and the spring curve. But if the range in question is higher than the spring range, or the range is lower than the NEAP range, extrapolation is not allowed. So if the range is higher than the spring range, you will use the spring curve.
If the range is lower than the NEEP range, you will use the NEEP curve. So you will not neither go outside of the NEEP curve on the lower side, nor shall you go on the higher side of the spring curve. So you have to please remember that in this case, only interpolation between these ranges is allowed. Extrapolation is not allowed. You can read on this side also. Decide the curve on the graph, dotted or the solid line. It's the range of tide which matters and not the time difference. Interpolation can be done between the two curves, but no extrapolation should be done. For ranges higher than the spring curve should be used, and for ranges less than the NEEP curve should be used. So beta, just go through these points now one by one and let me know any doubts coming in your mind. Sir, the last point says ठीक for है सर। range. हाँ Sir, बोलो sir, बेटा। the last point says that for ranges greater than spring curve should be used, and for ranges less than NEEPs, the NEEP curve should be used. So, sir, can you give a small example for this one? ओके, लेट अस से हम लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में हमने रेंज ऑफ टाइड कैलकुलेट की। हमारी जो रेंज ऑफ टाइड है वो आ गई 5.7 मीटर। हाउ मच, कितनी आ गई रेंज हमारी? 5.7 मीटर रेंज आ गई इसी Yes, पोर्ट sir. के लिए, एंटवर्प पोर्ट के लिए। अब हम इस डायग्राम में आ गए, हमें ये कर्व को यूज़ करना है। तो पहला डाउट मेरे मन में आया कि मैं डॉटेड लाइन को यूज़ करूं या सॉलिड लाइन को। मैंने देखा 5.5 के लिए सॉलिड लाइन यूज़ होगी, 4.0 के लिए डॉटेड यूज़ होगी, पर मेरी जो रेंज है वो तो आ गई 5.7, राइट। इसका मतलब है मुझे तो स्प्रिंग और नीप के बाहर जाना चाहिए। आई शुड गो टूवर्ड द सॉलिड लाइन आउटसाइड, इसके बाहर जाना चाहिए मुझे, इसके बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं करते हैं। अगर हमारी रेंज 5.5 या उससे कोई भी ज़्यादा रेंज आती है तो हम सॉलिड लाइन को ही अपने पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? Yes, sir. Okay, sir. ओके, और डाउट बताओ बेटा। सर सिमिलरली इसमें अगर नीप से कम होता है तो हम नीप का यूज करेंगे ना फिर? वेरी गुड बेटा, दैट इज राइट। और सर जैसे रेंज जो दे रखी है, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसकी रेंज एग्जैक्ट मैच करेगी जैसे 5.5 से या 4.0 से, तो तभी उनके कर्व को यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हाँ बेटा, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं करेगी, जैसे आपकी रेंज आ जाती है 4.7, तो फिर हम इन दोनों को यूज़ नहीं करेंगे। हम जैसे 4.7 ऑलमोस्ट इनका मिडल पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे इन दोनों के बिल्कुल बीच में एक कर्व अपने हैंड ड्राइंग से बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, गॉट इट सर। ठीक है सर, ज्यादा आएगी तो मतलब मैक्सिमम वाला ये स्प्रिंग वाला कर लेंगे, कम आएगी तो नीब वाला कर लेंगे, मिडिल में आएगी तो मिडिल वाला कर लेंगे, यही है बस। राइट बेटा, राइट राइट राइट। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। सर वॉइस नहीं आ रही है सर। ओके बेटा, गिव मी अ मिनट, अभी देते हैं।
in calculating times and height of tide at the standard port of ATT volume 1 through few examples. Calculate the height of tide at Antwerp ATT 1 at 0630 hours on 2nd January 1992. सो बेटा ये क्वेश्चन जो है ये आप नोट कर लो अपनी नोटबुक्स में. अब हम इस क्वेश्चन को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा और इसे अपनी नोटबुक्स में हम सब करेंगे. सो वी विल डू दिस. सो आपकी चार्ट वर्क की नोटबुक में इसको नोट कर लो एंड वंस यू आर नोटेड देन वी विल प्रोसीड अहेड. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Very good. So let's proceed ahead. We know that Antwerp is a standard port. Why? Because the video itself is aimed at covering the standard ports in ATT volume 1. But when it comes in the exams, it may not be mentioned that it's a standard port or a secondary port. So every time we shall carry out the entire process without assuming or presuming rather that the given port is a standard port. So now what shall we do? We shall go to the geographical index of ATT volume 1. Go to the geographical index of ATT volume 1. When you go to the geographical index, it's all in alphabetical order. You'll look down for port of Antwerp, and the port of Antwerp is here. What is written here is this: Antwerp. It is in caps. It is in bold. Other ports here are not in capital letters, nor are they in bold. There are only a couple of ports on this page which are in caps and bold. Now, all the ports which are in bold and capital letters are the standard ports in the geographical index. So when you visit the geographical index, and if you find the port you are searching for is listed in capital letters and in bold, that means it's a standard port. Then this port has a number 1539, which we shall learn, we'll use it when we do the secondary port, so it will not be used today. And it's also written here that its predictions are on page 182. So from the geographical index, you have figured out that Antwerp is a standard port. We did not presume Antwerp to be a standard port. We went to the geographical index. From the geographical index, we figured out it's a standard port. We also got the information that the predictions are there on page 182. Okay, so beta, please go to this geographical index in your tide tables and see. Are you getting this information? Yes. नहीं sir. ढूंढो बेटा, ढूंढो. Yes, sir. We have got it, sir. Very good. Anybody struggling? Everybody got beta? Still fine. Okay beta, ढूंढ लो. As soon as you find it, tell me here. Huh? सर इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है इंडेक्स टू स्टैंडर्ड पोर्ट. Yes sir. जियोग्राफिकल इंडेक्स में जाना है. जियोग्राफिकल इंडेक्स कल किया था हमने. सर लास्ट वाले पेजेस पे है ना जो. हाँ, लास्ट वाले पेजेस में है, पर वॉल्यूम 1 के लास्ट वाले पेजेस में है बेटा. 2 में नहीं जाना, 3 में नहीं जाना. मिल गया सर. हाँ ये वाला पेज जियोग्राफी. वेरी गुड, ढूंढ लिया बेटा तुमने आज 2021 में. ग्रेट. एनीबडी स्टिल स्टक? सबको मिल गया बेटा? वेरी गुड. सो लुक्स लाइक एवरीबडी गॉट इट. अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में तो हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया था कि ये स्टैंडर्ड पोर्ट है कि सेकेंडरी पोर्ट है. हमें बिल्कुल नहीं पता था.
हम तो ज्योग्राफिकल इंडेक्स में गए और वहाँ जाके हमने देखा कि ये जो पोर्ट है ये तो बोल्ड में लिखा हुआ है और कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। जैसे ही हमने बोल्ड और कैपिटल लेटर देखा हमें पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड पोर्ट है और इसके साथ ही हमें पेज नंबर भी पता चल गया कि पेज नंबर 182 है। सो अब हम जाएंगे पेज 182 पे। ये पहला स्टेप है जो आपको हर एक केस में, चाहे स्टैंडर्ड पोर्ट हो चाहे सेकेंडरी पोर्ट हो, करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो पोर्ट है ये स्टैंडर्ड है या सेकेंडरी है, और ये भी पता चल जाएगा कि ये कौन से वॉल्यूम में है। इसमें तो बेटा उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया ATT 1। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो पोर्ट है वो वॉल्यूम ना बताया जाए क्वेश्चन में, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 में है, 2 में है या 3 में है? इसी तरह से पता चलेगा। हम पहले 1 के ज्योग्राफिकल इंडेक्स में जाएंगे, वहाँ ढूंढेंगे, वहाँ नहीं मिलेगा तो 2 के ज्योग्राफिकल इंडेक्स में जाएंगे और वहाँ नहीं मिलेगा तो 3 में जाएंगे। सो एवरीबडी क्लियर अप टू हियर? वेरी गुड। चलें बेटा आगे, शैल वी? तीनों इंडेक्स में देखना पड़ेगा सर? बेटा अगर वॉल्यूम नहीं दिया हो तो फिर तीनों में देखना पड़ेगा। इसमें तो दिया हुआ था, हमारा काम आसान हो गया। अगर ये ना दिया हो, कई बार क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए वॉल्यूम नहीं देते हैं, ऐसे केस में फिर तीनों में देखना पड़ेगा, तीनों में देखना पड़ सकता है। और सर आपने बोला बोल्ड में और कैपिटल में तो स्टैंडर्ड पोर्ट है, बिल्कुल बेटा, दैट्स राइट। तो ऐसे तो सर उनकी दूसरे वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के में भी है, बोल्ड में और कैपिटल में। हाँ बेटा उनमें भी है, वो उनकी स्टैंडर्ड पोर्ट है। ओके सर। ओके 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 सर। ओके। अब बेटा मेरी एक बात आगे बढ़ने से पहले, एकदम सिंपल टॉपिक नहीं है और बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है। मैं बिल्कुल उंगली पकड़ के आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चला रहा हूँ, लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आप मेरे साथ इसको करते जाओगे। अगर तुमने टाइम पास किया कि ठीक है यार सर पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में, मिल जाएगा, इसी बुक में तो है सारा कुछ, तो फिर बेटा फिर बाद में फ्यूज़ उड़ जाएंगे, ओवरलोड हो जाएगा। ओके, सो जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, ये साथ साथ आपने करते चले जाना है। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, और अगर आप मिस करते चले गए बीच में, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, समझ गया बेटा? साथ साथ करना है ये, इसीलिए मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ। अगर एक भी बच्चा बोल देगा सर नहीं मिला, मैं रुक जाऊंगा वहीं पे। ओके, of ATT volume 1. So now we go to page 182 of ATT volume 1, and the page would look somewhat like this. And from here, we pick up the predictions for 2nd January, and these predictions, I magnified them here. These are the predictions, here are the times, and these are the heights. Obviously, this is the time for high water, this is low water, this is high water, and again, low water. So this is how we'll go to use the daily pages to extract information. सो बेटा 182 से ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। इस इंफॉर्मेशन को आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। 2 जनवरी की डेट में हाइट और टाइम, इनको नोटबुक में नोट कर लो एंड लेट मी नो वंस यू आर डन। Yes, sir. Done, sir.
लिख लिए सर। Very good, beta. Let's go ahead. Now to get the height of tide at 0630 hours, we use the interpolation curve. We use the daily prediction that we just extracted. And what do we see? That 0630 hours shall be falling between 0119 high water and 0801 low water. So our 6:30 time shall be falling between this high water and this low water. So we make a table of somewhat like this. High water 0119 and height is 5.1 meters. Low water is at 0801 hours and its height is 0.8 meters. I'm sure you all know what is the difference between these times called. This is called duration of tide. The duration of tide is 6 hours 42 minutes. And what is this difference called? This is called as range of tide. Range of tide is 4.3 meters. Now we find out that whether our time of interest, that is 6:30 hours, is it before this high water or after high water? I'm sure you'll agree it's after high water. So what is the interval of time in question from high water? So interval from high water is 5 hours 11 minutes after high water. So बेटा ये सारी चीजें जो है ना, जो टेबल यहाँ पे बना हुआ है, यू मेक दैट इन योर नोटबुक. ड्यूरेशन और रेंज निकाल के नोट कर लो. यहाँ से कॉपी नहीं करना स्क्रीन से, आपने अपनी वर्किंग करते चले जाना है एंड देन यू मैच इट विद द वर्किंग हियर. इंटरवल भी निकाल लो. वंस यू आर डन लेट मी नो, देन आई विल प्रोसीड अहेड. सर ये इंटरवल कैसे आया सर 5 hours 11 minutes? बेटा हमें किस टाइम के लिए टाइड चाहिए? 6:30। वेरी गुड. और हाई वाटर का टाइम क्या है? सर 0119 0119 है. दोनों में इंटरवल कितना है? और ठीक है उनका डिफरेंस। राइट. डन बेटा, हो गया यहाँ तक? इसका भी करना है क्या 1344 का और 2019 का ऐसे ही सर सेम? नहीं बेटा उसका नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो टाइम चाहिए 6:30 वो तो पहले दो रीडिंग के बीच में आ रहा है, तो लास्ट की दो वाली का हमें नहीं करना है. ओके सर. सर हम लोग ये लो वाटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं सर? नहीं बेटा, ये हमेशा हाई वाटर से ही कैलकुलेट होगा, बिकॉज हमारी डायग्राम में यहाँ सेंटर में हाई वाटर ही है, लो वाटर नहीं है. ओके ओके सर. सर जैसे नवीन 9 बजे का अगर ये पूछता तो उस टाइम के लिए फिर लो वाटर और हाई वाटर लेते सर 0801 1344. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही है. अगर 9 बजे का पूछा जाता तो ये दो रीडिंग्स पिक करते. टेबल भी ऐसे ही बनती फिर? बिल्कुल टेबल पहले ऐसे लो ही. वाटर फिर हाई वाटर? बिल्कुल बेटा ऐसे ही बनती. ओके सर. ओके चलें बेटा, आगे चलें. हाँ एवरीबॉडी ओके अप टू हियर? वेरी गुड. Yes, sir. Let's proceed ahead. So it's the difference between 6:30 and 0119. So our interval of the time in question is 5 hours 11 minutes after high water. Now we go to this side of the curve here. So first we plot mark of the low water on this lower scale. Low water is 0.8 meters. So we mark off the low water here.
and we mark off high water. What is the value of high water? 5.1 meters. We join both these points with a straight line, and line that we have got, we can call it as the interpolation line. So बेटा अब जो डायग्राम है वो उठा लो, जो पेज आपने प्रिंट आउट किया था एंटवर्प का, और उसमें आपने लो वाटर और हाई वाटर को मार्क करना है और इनको एक लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। अगर किसी के पास प्रिंट आउट नहीं है तो आप अपनी बुक वाली जो डायग्राम है उसे भी यूज़ कर सकते हो, पर बेटा बिल्कुल हल्के पेंसिल से यूज़ करना, क्योंकि बाद में अगर आपने हार्ड पेंसिल यूज़ की तो उसको इरेज करना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज़ द ओनली डायग्राम विच यू हैव। So just draw this line. Once you have drawn it, let me know, then we proceed ahead. कर लिया सर। Very good बेटा, चलें आगे। चलिए सर। Great. Let's go. Now we go to the base of this graph. Our interval is 5 hours, 11 minutes after high water. We just learned a while back that after high water would be on this plus side. So we go to point where it represents plus 5 hours, 11 minutes. And from here, we go vertically upwards. Now, which curve is to be used, whether we have to use... बेटा ये पॉइंट मिल गया, 5 hour 11 minutes आफ्टर हाई वाटर। सो प्लस में जाना है, दिस इज आफ्टर हाई वाटर, 5 घंटे 11 मिनट पे। सर 5:30 आएगा ना बीच में, जैसे 5 और 6 के बीच में। बेटा बिल्कुल बीच में तो 5:30 ही आएगा, पर हमें 5:11 पे जाना है बेटा। तो 10 पे आएगा, जो ये जो डिवाइड है वो ऐसे ही तो है सर, 10, 20, 30, 40, 50, बिल्कुल 60। सही है, बिल्कुल सही है। तो आप 10 के थोड़ा सा आगे जाओगे, अंदाजा थोड़ा सा आगे। ओके सर। एस्टिमेट 11 है ना हमारा, इतनी एस्टिमेशन हमें करनी पड़ेगी। सर जो ये इंटरवल निकाला 5 आवर्स 11 मिनट, ये आफ्टर हाई वाटर होगा? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर फिर ये हम ऊपर वाले स्केल से क्यों नहीं ले रहे इसको? कौन से वाले स्केल से बेटा? ऊपर जैसे हमने हाई वाटर जैसे 0119 पे 5.1 हमने ऊपर प्लॉट किया वो, राइट। तो वैसे उस टाइम के लिए जैसे 5 आवर 11 मिनट के लिए वहां पे क्यों नहीं प्लॉट कर रहे? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड बेटा, एक बार फिर से अपना डाउट पूछो। सर 2 स्केल दिए हुए हैं सर हमें, एक लो वाटर का, एक हाई वाटर का। राइट, एक लो वाटर का नीचे है, हाई वाटर का ऊपर है, बिल्कुल सही। यस सर। लो वाटर वाले में हम नीचे से पॉइंट ड्रॉ किया हमने, और हाई वाटर वाले में ऊपर से पॉइंट ड्रॉ किया है। बिल्कुल सही है। तो अभी जैसे मैं कह रहा हूँ 5 आवर 11 मिनट आफ्टर हाई वाटर, तो मैं ऊपर वाले स्केल से क्यों नहीं ड्रॉ कर रहा इसको? यहाँ पे क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे इसको, ये पूछ रहे हो आप? यस सर। बेटा ये हाई वाटर की हाइट है मीटर में, इंटरवल नहीं है। यहाँ पे हमें हाई वाटर की हाइट डालनी है, इंटरवल यहाँ है नीचे। टाइम नीचे। राइट, टाइम नीचे है बेटा। ये जो +1 आवर, +2 आवर, +3 आवर लिखा है, ये है टाइम। ऊपर तो मीटर है बेटा, तो वहां तो मीटर ही आएगा ना। ओके सर। 5 आवर 11 मिनट। सर एक बात पूछनी थी। पूछो जी। सर अगर ये जैसे +5 आवर 11 मिनट, अगर ये माइनस में आता तो हम पीछे आ जाते ना हाई वाटर के? हाँ बेटा देखो, माइनस में आ जाते। अगर हमारा जो टाइम है वो 0100 होता तो 0119 से पहले आ जाता ना 20 मिनट, 19 मिनट। तो फिर हम सर ये नेगेटिव। इंटरवल हमेशा हाई वाटर से निकाला जाता है? हाँ देखो, बीच में हाई वाटर लिखा है ना बेटा डायग्राम के। यस सर। तो हाई वाटर से ही निकलेगा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि इंटरवल हमेशा ही हाई वाटर से निकाला जाता है, ऑलवेज? हमेशा ही हाई वाटर से निकाला जाएगा। ओके सर, क्योंकि मैंने आपको 9 आवर्स का पूछा था ना, जैसे अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले सर।
तो उसमें फिर हम लिखते जैसे कि 0801 लो टाइड था और 1344 हाई टाइड था। तो हम जैसे टेबल बनाते कि लो वाटर हाई वाटर, तो हम इंटरवल फ्रॉम हाई वाटर लिखते सर नीचे फिर। बिल्कुल बेटा, इंटरवल फ्रॉम हाई वाटर ही लेते। 1344 से ही लेते उसको। वेरी गुड, 1344 से ही लेते। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके, अब चलें बेटा आगे। हाँ सर। ओके वैसे हमारा ना टाइम हो गया है। ओके कंप्लीट कर दे सर। ऐसा ऐसा सर करते ये हैं बेटा, क्वेश्चन तो कंप्लीट करेंगे। तो सर ये तो कर कंप्लीट लोगे? करते हैं सर, ये आज करा दीजिए सर, तब नहीं तो फिर भूल जाएंगे इसके। बीच ठीक है में बेटा, लटक जाएंगे सर। ठीक है हम ठीक है, शाम फिर को मैं प्रैक्टिस कंप्लीट कर करा लेंगे रहा हूँ। फिर इसकी। फिर मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। वी आर गोइंग इनटू लंच टाइम, सो अब देखते रहना इसको। हाँ ठीक है, ओके बेटा, लेट्स कंप्लीट इट। वो वीडियो चलेगी आगे। आगे बेटा चलो। Point where it represents plus 5 hours 11 minutes, and from here we go vertically upwards. Now which curve is to be used, whether we have to use the spring curve or the neap curve? Let's look at the range. Our range is 4.3 meters, spring range is 5.5 meters, neap range is 4 meters. So our range falls in between the two, so we shall be able to interpolate. So we go vertically upward from this point here on the baseline, and we go past the knee curve. So basically, if I draw this straight line up, this line between these two curves shall represent a range of 1.5 meters. We have to go basically 0.3 meters up. So visually we can interpolate, and we can go in between the two curves. Basis the visual interpolation. तो बेटा अब आपको समझ में आया कि हम इस पॉइंट पे ही क्यों रुके, हम डॉटेड लाइन पे क्यों नहीं रुके, हम सॉलिड लाइन पे क्यों नहीं रुके, ऊपर क्यों नहीं रुके, यहाँ पर ही क्यों रुके हम, ये समझ में आया बेटा? यस सर, इंटरपोलेट कर दिया। यस सर, रफ वेरी इंटरपोलेट कर गुड, दिया। वेरी गुड बेटा, हमने इसकी रफ इंटरपोलेशन की। जो डॉटेड वाली लाइन थी वो 4.0 रिप्रेजेंट कर रही है, जो सॉलिड वाली लाइन थी वो 5.5 रिप्रेजेंट कर रही है। हमें कितनी वैल्यू चाहिए थी? हमारी रेंज है 4.3। ओके, सो ये टोटल जो डिस्टेंस था डॉटेड से लेके सॉलिड तक का, वो है 4 मीटर से 5.5, 1.5 मीटर का गैप है दोनों में, 1.5 मीटर का गैप। हमारी रेंज कितनी है? 0.3 मीटर। सो 4 मीटर से 0.3 मीटर ऊपर जाना है हमें। सो टोटल था 1.5 मीटर, हमें ऊपर जाना था 0.3 मीटर, मीन्स टोटल का 1/5। तो अंदाजे से हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले गए। इसे हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्केल से मेजर करके आप इसे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा सर, पॉइंट बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा सर। ये आप ओके, नहीं समझ में आया बेटा? ये बस लास्ट पॉइंट नहीं समझ में आया सर, ये जो आपने 5 आवर्स और 11 मिनट्स पे प्लॉटिंग करा है सर, मतलब ये लाइन ड्रॉ किया है, ये कैसे हुआ क्या हुआ बिल्कुल नहीं क्लियर हुआ। कोई बात नहीं बेटा, ये पॉइंट समझ आ गया 5 आवर 11 मिनट वाला? ये तो सर समझ में आया, हाई वाटर के 5 आवर 11 मिनट प्लस में जाना है हम लोग को, यहाँ तक तो क्लियर था सर, इसके बाद नहीं है। वेरी गुड, अब अपना माइक ऑन रखना और जब मैं पूछूं तो आंसर देते जाना। ओके सर, ओके। इस पॉइंट से वर्टिकली लाइन ऊपर खींचनी है, ये भी समझ में आया? ये सर वर्टिकल लाइन ऊपर खींचनी समझ में आया। वेरी गुड। अब वो लाइन को कहाँ रोकना है, डॉटेड लाइन पे रोकें या सॉलिड लाइन पे रोकें, कहाँ रोकना है, ये सवाल है हमारे आगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम डॉटेड पे रुकें या सॉलिड पे रुकें या बीच में कहीं रुकें, कैसे पता चलेगा? ये डॉटेड लाइन के आगे कितना हाइट लिखा हुआ है ऊपर मीन रेंजेस में देखो, 4.0 मीटर लिखा है। यस सर, 4.0 मीटर लिखा है सर। इसका मतलब है कि अगर 4.0 मीटर की रेंज है तो आपको डॉटेड लाइन पे रुक जाना है। क्लियर बेटा? ओके सर, ओके। अब सॉलिड लाइन के साथ में लिखा है 5.5 मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेंज 5.5 मीटर्स की होती तो हम ये सॉलिड लाइन पे रुकते।
हाँ सर, समझ में आया। दोनों में फर्क कितना है? 1.5 मीटर का फर्क है। डॉटेड लाइन 4 रिप्रेजेंट कर रही है, सॉलिड लाइन 5.5 रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों में जो गैप है वो 1.5 मीटर का गैप है। ओके, जो मैं कर्सर से दिखा रहा हूं आपको, राइट? जी सर। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में रेंज कितनी है। ये तो स्प्रिंग की रेंज थी 5.5, नीब की रेंज थी 4। हमारी रेंज कितनी है? हमारी रेंज है 4.3। लेफ्ट साइड में देखो कर्सर, 4.3 हमारी रेंज है। यस सर। अब ये 4.3 कहाँ पे जाके रुकेगी? डॉटेड लाइन 4.0, सॉलिड लाइन 5.5, हमें रुकना है 4.3 पे। इंटरपोलेशन कर सकते हैं? यस सर। अब समझ में आया बेटा? सर मगर इसमें तो सर अगर रफली अगर करेंगे तो सर ये तो गलत भी हो सकता है ना सर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बेटा, दैट मच एरर इज अलाउड। ओके सर। ओके बेटा, इतना तो आपको पता चल रहा है ना कि 4.3 4 मीटर के पास है और 5.5 से दूर है। इतना तो पता चल रहा है ना? जी सर, रफ कैलकुलेशन से तो लगा देंगे, लेकिन मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा सर। नो प्रॉब्लम बेटा, इतनी एरर इस क्वेश्चन में अलाउड है। ओके सर। ओके, ओके सो सर, आप थैंक चलें बेटा आगे। अब ये पॉइंट आ गया, अब आगे चलें। यू। यस सर। वेरी गुड, हमने इस लाइन को यहाँ पे रोक दिया, ये हमें पता चल गया। अब आगे चल रहे हैं। Now, wherever we end this line, from here we draw a horizontal line and go to the interpolation curve, something like this. So we have gone like this to the interpolation curve. ये स्टेप भी समझ में आया बेटा? यस सर। जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। कहाँ तक? जो हमने ये इंटरपोलेशन लाइन बनाई थी सर वहाँ आपकी तक। आवाज नहीं आ रही। बेटा, अदर पीपल कैन हियर मी? यस सर। यस सर। यस सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। यस सर। किसी की आवाज़ चली गई है बेटा, उसको कोई हो आवाज़ नहीं सकता है सर, आएगी। वो लग रहा है सर नेटवर्क में दिक्कत हो गई, हो सकता है जितेंद्र के। जितेंद्र की आवाज़ चली गई है? सर हाँ बोल बेटा, बोल जितेंद्र। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ बेटा, अब क्या करें, बाकी सबको आ रही, तुझे नहीं आ रही। लॉग बेटा आउट करके लॉग इन करो। उसे ये भी सुनाई नहीं देगा भाई। किसी के पास फ़ोन नंबर है उसका तो फ़ोन कर दो बेचारे को। ठीक है सर। ओके ओके बेटा, सो इस पॉइंट से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया अप टू द और किसी इंटरपोलेशन। को आ रही है मेरी आवाज? बेटा किसी के पास फ़ोन नंबर है इसका? सर ग्रुप में टेक्स्ट किया है सर। ओके, ऑल राइट। सो हमने बेटा इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और ये इंटरपोलेशन लाइन पे जाके जहाँ पे मिली वहाँ हमने इसको छोड़ दिया। अब हम आगे चल रहे हैं यहाँ से। From wherever this horizontal line goes and meets the interpolation curve, we go vertically upward and reach this point here. Now, where this line cuts the scale, we read it off on the scale, and that shall be the height of tide at Antwerp at 0630 hours on 2nd January 1990. What we read this is the height of tide at 6:30. This height we find is from this graph as 1.75 meters. ओके, सो ये स्टेप भी समझ में आया बेटा? यहाँ से वर्टिकली ऊपर चले गए, आप चाहो तो नीचे भी जा सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो। और जहाँ पे ये जाके मीट करेगा वहाँ से हमने हाइट को रीड कर लिया। हमारी हाइट आ गई 1.75 मीटर। यहाँ तक जो भी डाउट है बताओ। सर जैसे थोड़ा आगे पीछे हो जाता। सर मान लीजिए सर 1.70 किसी की आ रही हो सर, तो गलत है, सही है सर? सही है बेटा, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। और किसी की सर कितना डेविएशन हो जाता है? 1.6 आ रही है सर, तब सर? ओके, तब बेटा चेक किया जाएगा कि आपने डायग्राम में ये पॉइंट सही लिए हैं। 5:11 से शुरू किया था
और ये इंटरपोलेशन लाइन ठीक है या नहीं है। अगर आपकी डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर कोई एरर है तो फिर नंबर कट जाएंगे। बट पूरा नहीं कटेगा ना सर? नहीं बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक में 20% मार्क्स कटते हैं। ओके सर, ओके। और डाउट बताओ बेटा। सर जो हाई वाटर जो लिखा हुआ है जो 2 मीटर पे जहाँ पे क्रॉस कर रहा है इसको सर, एक मिनट बेटा, हाई जो वाटर 2 मीटर, ये वाला बेटा, ये यहाँ मिडिल मिडिल में सर, मिडिल में सर, जो ये टाइम वाला, इंटरवल लिखा हुआ है। हाँ हाँ सर, ये फैक्टर की बात कर रहे हो बेटा? ये जी जी सर, ये वैल्यू क्या हुई सर, अगर मतलब ओके, आप इस फैक्टर की बात कर रहे हो जो लिखा है 0.1, 0.2, 0.3, राइट? जी जी सर, जी सर। अभी के लिए हम इसे भूल जाएंगे कि ये यहाँ पे नहीं है, बाद में बताऊंगा ओके क्या सर, होता है। ओके सर, ओके सर। ओके, और कोई डाउट बेटा? नहीं सर, ऑल क्लियर सर। वेरी गुड, लेट्स गो अहेड। Yes, sir. Answer shall be that the height of tide at Antwerp at 0630 hours on 2nd January 1992 is 1.75 meters. सो इसके साथ ही बेटा हमारा आंसर जो पूछा था उन्होंने, कैलकुलेट द हाइट ऑफ टाइड एट एंटवर्प एट 6:30 ऑन 2nd जनवरी, ये आ गया। हाइट ऑफ टाइड एट 6:30 1.75 मीटर। क्वेश्चन डन, फिनिश। क्लियर? सो सही है सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया बेटा, ऑल क्लियर? हाँ सर, हाँ। वेरी गुड। सो सारी खिड़कियां खुल गई अब दिमाग की हमारे। 2021 में हमने हाइट ऑफ टाइड निकालना सीख लिया है, स्टैंडर्ड पोर्ट एटीटी वॉल्यूम 1। ग्रेट अचीवमेंट। सो अब आप बेटा इन योर ओन टाइम आप ये जो डायग्राम थी हमारी, इस डायग्राम पे इसे प्लॉट करके देख सकते हो एंड यू कैन मैच योर वर्किंग एंड द आंसर्स। बोलो बेटा। सर वो एंटवर्प 1539 का क्या करना था सर? किसका इंडेक्स बेटा? वाला पेज ओके, वो जो आप निकाला था। 1539 नंबर की बात कर रहे हो। हाँ सर। वो इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए, जब हम आगे जाएंगे सेकेंडरी रिपोर्ट में तब चाहिए होगा। ओके सर, ओके। इस क्वेश्चन ठीक में है, नहीं चाहिए। ठीक है सर। और सर एक बात पूछनी थी सर, हाँ बोलो बेटा। जो स्टैंडर्ड सबके जो जैसे अपने जो टाइड कैलकुलेट करने के लिए जो डायग्राम है वो सब डिफरेंट डिफरेंट है, हर एक पोर्ट के मतलब लिए अलग स्टैंडर्ड। डायग्राम है, हर एक पोर्ट के लिए अलग डायग्राम है वॉल्यूम 1 में। हाँ, अगर वॉल्यूम 1 का कोई क्वेश्चन देंगे वो लोग, तो वो लोग वो प्रोवाइड करेंगे उसको, बिल्कुल बेटा, वो डायग्राम आपको देंगे। पता लगा लेंगे कि कौन से पोर्ट का है, से अगेन बेटा। उसी से पता लगा लेंगे सर कौन से पोर्ट का है। वो बेटा पेपर के पहले थोड़ी देंगे आपको, जब बैठ जाओगे एग्जाम हॉल में उसके बाद देंगे ना। मैं उसी टाइम की बोल रहा हूँ सर। अपने पास सर ये तो प्रोवाइड करेंगे, होती है ना टाइम टेबल एग्जाम में। टाइट टेबल मिलेगी आपको, वहीं से तो वैल्यू उठाओगे आप। हाँ, तो वो देंगे सर क्वेश्चन करने के लिए अपनी सीट, तो मैच कर लेंगे टाइम टेबल से, पता चल जाएगा इजीली। वो तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ये एंटवर्प है, जो डायग्राम है उसमें भी तो यही नहीं, लिखा होगा कि ये एंटवर्प है। यहाँ तो लिखा हुआ है ना सर क्वेश्चन में, ऐसे नहीं लिखा होता तब की बोल रहा हूँ सर। हाँ ओके ओके ओके, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। ओके ओके, ऑल राइट। सो बेटा लेट्स ब्रेक ऑफ नाउ। लंच के लिए आपके पास अब आधा घंटा ही बचा है। सो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। आपको कोई भी अगर डाउट होगा इसमें, इसको ध्यान से देखो। एज आई टोल्ड यू दिस इज देयर इन द वीडियो ऑल्सो ऑन आवर चैनल। सो आप इसको ध्यान से देखो, और फिर भी कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में हम ये डाउट सॉर्ट आउट करेंगे। और अब से बेटा आगे जो भी हमारी क्लासेस होंगी उनमें आपको टाइट टेबल और ये टूल्स, कैलकुलेटर, पेंसिल, स्केल, इनको अपने पास रखना है। हम प्रैक्टिस करेंगे, इन सारे सवालों की प्रैक्टिस होगी। आप इसे अपनी नेविगेशन चार्ट वर्क की नोटबुक में करते चले जाओगे। सो दिस इज़ द
requirement for further lecture till we complete tides. So that's all for this session.